थर्मोडायनेमिक्स, हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। इसको फ्लूइड डायनामिक्स भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हर फिजिक्स के ब्रांच में आपको दो मिलेगा, एक होता है स्टैटिक जहां रेस्ट में होगा पार्टिकल, डायनामिक्स मीन्स मूविंग पार्टिकल्स होगा, ठीक है। नाउ हियर अंडर हाइड्रोडायनामिक्स टाइप्स ऑफ फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो में यू हैव सीन, आई थिंक यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ फ्लो। एक फ्लो होता है आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो। द नेम ऑफ वन फ्लो इज a streamline, the other one is a, you can take it tubular flow, you can have laminar flow, and you can have turbulent flow. This is the shape of the molecules during the motion of the fluid. This is an example of the, you must have not seen, I think, river water, canal water. जो इरिगेशन के लिए कैनाल वाटर होते हैं, जनरली इट इज फाउंड देयर। कैन हैव योर वाटर पाइप कनेक्शन कहीं हो रहा है, पाइप के थ्रू में हाउ द वाटर फ्लो इज, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक हियर। ट्यूब, ये आपके पास एक ट्यूब दिया है, इस ट्यूब में सारे वाटर ऐसे लाइन बना के जा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन लाइन, water molecules are moving in line, there are different spots. Suppose I have taken the water molecules at this point, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया B है, and here it is cross sectional area C. Again, what I have taken, I am explaining here, it's a tube, water is moving through the tube, ठीक है। When the water is moving through the tube uniformly, supply आपका uniform है, I have taken three positions at the point A, at the point B, at the point C, cross-sectional area. The water molecules passing through this, अगर ये water molecule इसमें पास कर रहा है, उससे velocity v है। If it is passing this point, इसका velocity vb है। If it is passing through the, it is your vc है। If va is the velocity of one water molecule, इससे next जितने भी आएंगे और इसके आगे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स गए होंगे, इसका प्रेडिसेसर और इसका सक्सेसर, प्रेडिसेसर मीन्स पहले जो गए हैं, सक्सेसर मीन्स बाद में जो आ रहे हैं। The velocity at this point will remain as va. Again I am telling you, velocity of all water molecules passing through the point A remains same as of their predecessor or of their successor. Is the theory understood? इसको समझ में नहीं आया इन कुछ, ये एक ए पॉइंट है, जितने मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लूइड मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू में जाएंगे, उनका वेलोसिटी अगर v है, va है, सबका वेलोसिटी इसी पॉइंट में va हो। इन द सेम वे all the molecules passing through the point B will have the velocity vb. आगे भी जो गए हैं, पीछे भी जो आ रहे हैं, if they are crossing this point B, then they should have the velocity vb. In the same way vc, but va may not be same as vb, may not be same as vc. हो सकता है यहाँ डिसाइड किया है मेरा 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ मेरा वेलोसिटी इसके प्रोफेशनल और टाइम के अकॉर्डिंग ये सपोज 4 मीटर पर सेकेंड, ये सपोज 3 मीटर पर सेकेंड। So all the particles moving through the point A should have velocity 5 meter per second, to B 4 meter per second, through C 3 meter per second. If this is the velocity sequence, they are exactly following the magnitude and direction of the velocity of their predecessor. If the molecules are following exactly the velocity of their predecessor, then the type of flow is known as streamline flow. Is it understood? स्ट्रीमलाइन फ्लो किसको बोलते हैं? अगेन आई एम टेलिंग, उसे कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में सारे पार्टिकल्स जो क्रॉस करते हैं, दे शुड हैव द सेम वेलोसिटी, बट एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया द वेलोसिटी मे बी डिफरेंट, बट ऑल पार्टिकल्स passing through that area also
should have the same velocity as of their predecessor or successor. किसको डाउट है इसमें बताओ? स्ट्रीमलाइन फ्लो में is it understood? Vanshika, tell me. Streamline flow understood? Yes, ma'am. You tell me what you have understood. Ma'am, that ma'am, if the particle will go across, ma'am, VA, then it will attain the velocity same as VA, and same with VB and VC. Okay. So you can write down velocity at any point. Velocity at any point is exactly same both in magnitude and direction. Both in magnitude and direction as of their predecessor. इससे पहले जाने वाला सारे लोग as of their predecessor. Then this type of flow, then the type of flow is streamline. Type of flow is streamline. I think I have given you the explanation how you can take this streamline flow. Now what are the properties of streamline flow? अगर इस streamline flow में मैं एक tangent draw करूंगी तो what it will show me? Properties of streamline flow. Properties of electric field lines you have already read. Class 10th में, what I think. 10th class. Anyone was remembered properties of electric field lines? Properties of electric field lines. No idea. किसी को याद नहीं है? 10th class. Come to electric field, never cross each other. Never cross each other. Same thing here. Two streamlines never cross each other. Two streamlines can never intersect each other. Why it is so? वहां क्या आंसर था? यहाँ क्या आंसर? Why it is so? Two streamlines never intersect each other. वहां क्या आंसर था? Ma'am, if they intersect each other, that means two directions are possible, which is not possible at the same time. Directions are possible at the same time. ये अगर two electric field lines है, they cross each other at the point A. Then जो चार्ज पार्टिकल है उसके लिए यहाँ भी जाने के लिए डायरेक्शन है, यहाँ भी जाने के लिए डायरेक्शन है. इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करता है. If they will intersect each other, then the charge particle will be confused. There will be two different directions for the same charge at the same point, which is impossible. Now the same theory is here. If two streamlines are crossing each other, what will be the answer? Why should not they intersect? What will happen? How can we change the language? Is anyone? Aryan is absent. Aryan, where are you? Ma'am, if they intersect each other, that means two different directions of flow are possible. Yes, And it will be under influence of both the lines, so it will not go in one direction. There are two different directions for the water molecule. For the liquid molecule at this point, there will be two different directions for the movement, which is not possible. Same answer. Two different directions for the charge particle. Here two different directions for the water molecule, liquid molecule, fluid molecule. You can tell. For this only, it is not possible. Second one. अगर वो diagonally चला जाए तो? Diagonally कैसे चला जाएगा? मैम अगर एक स्ट्रीमलाइन सीधी जा रही है और एक परपेंडिकुलर है उसके, तो अगर वो मैम उसको इन्फ्लुएंस करेगा और वो डायगोनली चला जाए तो तभी तो कंफ्यूजन में रहेगा ना. वो सेम डायरेक्शन में नहीं हुआ ना. आप ऐसे बोल रहे हो एक स्ट्रीमलाइन ऐसे जा रहा था, एक इधर जा रहा था, तो डायगोनली तो ये चला गया ना, तो ये यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, इसीलिए तो कंफ्यूजन हुआ ना. मैम वो उसी पॉइंट पे रह सकते हैं, मतलब बीच में जहाँ पर वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पर
क्रॉस ही नहीं करेंगे। टू स्ट्रीमलाइन, ये वाला स्ट्रीमलाइन के लिए पर्टिकुलर ऐसे जाएगा, ये स्ट्रीमलाइन के लिए पर्टिकुलर ऐसे जाएगा। दे नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट करेंगे तो दे नॉट स्ट्रीमलाइन, इसलिए दे नॉट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करें तो स्ट्रीमलाइन नहीं है, दूसरे टाइप का फ्लो है। वी आर हैविंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में बहुत सारे कंडीशंस हैं। नेक्स्ट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, यहाँ में स्ट्रीमलाइन लिख रहे हो। एट एनी पॉइंट ऑन स्ट्रीमलाइन, वहां था ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डायरेक्शन देते हैं, किसका डायरेक्शन देते हैं? इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां, यहाँ क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। आप स्ट्रीमलाइन फ्लो पूरा लिख सकते हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो का डायरेक्शन दे सकता है। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। ये दो ही सफिशिएंट है स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। नाइस। स्ट्रीमलाइन फ्लो में आपके लिए भी क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी भी बच्चों के लिए क्वेश्चन आ रहा है, बच्चे नहीं समझ रहे, आपके लिए दिया होगा ये स्ट्रीमलाइन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहाँ दे देगा ए, यहाँ दे देगा बी, यहाँ दे देगा सी, ये डी, ये ई, लाइक दिस। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देगा वी ए इज इक्विवेलेंट टू वी डी इज इक्विवेलेंट टू वी बी, करेक्ट है। वी ए वी सी वी बी, करेक्ट है। वी ए वी डी वी ई, वी डी वी सी वी बी, क्वेश्चन इज करेक्ट अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो आप समझे हो तो। Yes, tell me ABCD I have given a multiple choice question for you. C. हम सेकंड ऑप्शन में ए सी बी लिखा है ना। Second option A C B लिखा है। C is the correct answer. Very good. C is the correct answer because ये एक ही पॉइंट है। A D, आपको ऐसे आंसर देखना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हो। आर्यन, you are not present. Dishita, are you present? Yes, ma'am. Dishita, Present, ma'am. Aryan, is it understood? Yes, ma'am. Dishita, where are you? Dishita. Yes, ma'am. बात Dishita, तुम्हें समझ में आया? Yes, आंसर ma'am. बड़ा मुश्किल से आंसर दे रहे हो तुम फिजिक्स में, ठीक है। मैं समझा करो ना फिजिक्स अच्छे से, क्या प्रॉब्लम है। फिजिक्स थोड़ा सा मैथमेटिकल होता है, रीजनिंग, लॉजिक, मैथमेटिक्स तीनों होता है इसमें। ओके, दिस आर योर स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो के बाद आपके पास है ट्यूबुलर फ्लो। ट्यूबुलर फ्लो भी आपका ए बंच ऑफ स्ट्रीमलाइन। सपोज यू आर हैविंग ए ट्यूब लाइक दिस, यू आर हैविंग ए ट्यूब लाइक दिस। इस ट्यूब में जो स्ट्रीमलाइन होता है, ये सारे स्ट्रीमलाइन है, ये सारे स्ट्रीमलाइन है। देन ए बंच ऑफ स्ट्रीमलाइन इन द शेप ऑफ ए ट्यूब कैन गिव यू ट्यूबुलर फ्लो, ठीक है। चाहे ट्यूब आपका आगे कितना भी मोड़ा हुआ है, बट ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, क्योंकि दो लाइन यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे। ये ट्यूब आप मत सोचो कि हमेशा वो स्ट्रेट होगा, ट्यूब सबका ऐसे हो सकता है, लेकिन इसके अंदर भी स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जा सकता है। फॉर दिस वन इट इज टोल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो में यहाँ अगर वेलोसिटी 5 है तो यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, डिपेंड करता है। 5 इज नॉट इक्वल टू 8 बट द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, क्योंकि 5 इसी पॉइंट में क्रॉस करने वाला ऑल मॉलिक्यूल्स हैव 5। अंडरस्टूड? थोड़ा सा लॉजिकली दिया हुआ है स्ट्रीमलाइन फ्लो का एक्सप्लेनेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बच्चे एक्चुअली क्या करते हैं कि अगर 5 स्ट्रीमलाइन का कोई एक एग्जांपल दे दो। क्या स्ट्रीमलाइन फ्लो का एग्जांपल दूं? हम ट्यूबुलर फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो फिर सेम ही नहीं हो गए? नहीं, ए बंच ऑफ स्ट्रीमलाइंस गिव यू ट्यूबुलर फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का आपका दिया हुआ है, लेकिन ट्यूबुलर में ट्यूब के सेट में हाँ लगभग सेम है। नेक्स्ट आ जाए लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो में क्या होता है, दे मूव इन द फॉर्म ऑफ ए लैमिना। इसे ये होता है ना, तभी आप देखे होंगे ये जो लेयर्स है ये आगे है, जो एडजेसेंट लेयर्स आगे है। लिक्विड में जो ट्यूब के साथ चलने वाला लेयर्स थोड़ा आगे होते हैं,
इसके बाद ये जो लेयर्स है ना, ये थोड़ा सा पीछे पीछे होता है, इस टाइप का। अब एवर सीन ये इस टाइप के शेप होते हैं, ये शेप होते हैं। और कभी कभी देखोगे आपका शेप जो होता है ना, ये सारे प्लम्बर वाला काम है, कनेक्शन। अभी कभी कभी आप ये देखे होगे कि ये फ्लो ऐसे होता है, दिस इज योर फ्लो, ऐसे फ्लो होता है। और कभी कभी आप फ्लो देखे होंगे ये एग्जैक्टली स्ट्रेट होता है, ये होता है पूरे स्ट्रेट। सपोज आई हैव टेकन 3 लिक्विड A, B and C in the same tube. एक ही पैटर्न के ट्यूब में मैंने 3 लिक्विड्स अंदर दिए। इसमें से ये जो शेप है इसके नाम, यू आर स्टैंडिंग हियर, यू आर स्टैंडिंग हियर, टेल मी व्हाट इज द शेप, कनकेव और कन्वेक्स? Concave. इसको बोलते हैं कनकेव वेलोसिटी प्रोफाइल, इसके नाम है वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल बन जाता है लैमिनर फ्लो में, ये पूरे लैमिनर शेप हो जाता है। लैमिनर प्रोफाइल आपका कनकेव है। यहाँ क्या है, दिस वन इज कन्वेक्स, दिस वन इज प्लेन। कैन यू गिव मी द लिक्विड ए बी सी, कौन किस टाइप के लिक्विड होंगे? जहाँ कनकेव शेप भी हो सकता है, कन्वेक्स शेप भी हो सकता है, प्लेन शेप भी हो सकता है। एनी आइडिया कहाँ का किस टाइप के लिक्विड? मैम जो थिक हो, जो ठीक हो। मेरे पास टमाटो केचप ठीक है, हनी ठीक है, कास्टर ठीक है, घी भी ठीक है, शेप कैसे होगा? ये थोड़ा इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप सिर्फ बी खाए बी किसके लिए होगा जो ठीक है। यस मैम। सी आपका डिस्टिल्ड वाटर, वाटर। सी इज फॉर डिस्टिल्ड वाटर। और ये जो वाटर चिपक के जा रहे हैं ना, थोड़ा सा कनकेव है, ये आपका ऑर्डिनरी वाटर, ये आपका और थिक लिक्विड के लिए, हाईएस्ट ये मर्क्यूरी के लिए होगा। और जितने आपके पास टमाटो केचप है, हनी है, सारे इस टाइप के है, इसका बहुत ही ठीक है। ये आपका ऑर्डिनरी वाटर है, कनकेव शेप, जो आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई जाता है। ऑर्डिनरी आईज से नहीं दिखाई जाता, लेकिन वाटर का थोड़ा सा आधे से नेचर ज्यादा है, तो वाटर ये कंटेनर के साथ आगे चला जाता है, विल कम अक्रॉस। और यहाँ ये डिस्टिल वाटर, इज इट अंडरस्टूड? मैम सीधा तभी होगा ना जब वो लिक्विड नॉन विस्कस होगा, और डिस्टिल्ड वाटर में तो विस्कस फोर्स होगी ना कुछ तो। नहीं होता है, डिस्टिल वाटर आपका पूरे प्लेन देता है, प्लेन देता है। अल्कोहल डिस्टिल वाटर आपका प्लेन नहीं है। और ये कनकेव है आपका नॉर्मल वाटर, कन्वेक्स है आपका मैं मोस्टली मर्क्यूरी और ऑल अदर। ये आपका वेलोसिटी प्रोफाइल है जो आपको लैमिनर फ्लो देता है। लैमिनर फ्लो इज नॉट एग्जैक्टली इन योर न्यू सिलेबस, but still also you should know. Next one is your turbulent flow. Next flow आपके पास turbulent कब होता है? एक होता है turbulent flow. अभी आप देखे होंगे there are two different situations in India. Northern region is an attack of bad air, और southern region is attack of bad water. इसमें वाटर एक्सेस है, अपने ही पानी में डूबे हुए हैं, और दूसरा यहाँ अपने ही कुछ जला के पोल्यूशन करके उसी के अंदर डूबे हुए हैं। दोनों रीजन में ये प्रॉब्लम। अभी जो पानी में डूबे हुए, पानी में आपको पहले से सपोज कहाँ से सुनामी आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं, और यहाँ बहुत ही हाई रीजन में फ्लड आएगा, इसको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। ये सुनो, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कैसे डिसाइड करता है? कभी सुने होंगे साइक्लोन एरिया में अगर आप रहे होंगे तो ये सारे पोर्ट में जाने वाले, सबसे पहले पोर्ट में जाने वाले फिशरमैन को वार्निंग दिया जाता है। फिशरमैन को वार्निंग दिया जाता है, तो बोलते हैं सिग्नल दिया जाता है। पोर्ट में सिग्नल दिया जाता है, सिग्नल नंबर 7
को उड़ा दिया गया है। सिग्नल नंबर 8 में चल रहा है, 9 में चल रहा है, 10 में चल रहा है, 11, 12, 13 डेंजरस लेवल बढ़ते जा रहा है। सिग्नल 7 से स्टार्ट हो जाता है, 7 नंबर संकेत को उड़ा दिया गया है, इसका मतलब 8 नंबर में चल रहा है और डेंजरस लेवल का टाइड से आ सकता है। Fishermen don't go inside. Anyone who has the experience of staying in sea beach area during cyclone, during tsunami? No idea. Okay. अगर आगे फ्यूचर में कभी आएगा तो आप सुनोगे इतने नंबर सिग्नल को क्रॉस किया है। और ये साइक्लोन जो होता है, अभी आप देखो कि बहुत खतरनाक साइक्लोन आ रहे हैं, सारे नेम भी डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन द रीजन ओरिजिन। सारे साइक्लोन का नेमिंग करना स्टार्ट कर दिया वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। अभी रिसेंट साइक्लोन का नाम क्या था जो बहुत ही खतरनाक था? थोड़ा सा पुराना आपका फनी होगा, फनी इन ओडिशा। उसके बाद कौन सा साइक्लोन था गुजरात एरिया में? एनी आइडिया? गुजरात अरबिक ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरबिक ओशन, 2 ओशन है एक्चुअली। तो बे ऑफ बंगाल में अभी था कुछ, इससे पहले गुजरात में था, फिर ऑल्टरनेट होकर चल रहा है। 1 मंथ में 3 साइक्लोन था, बड़े बड़े साइक्लोन के नाम आप सुने होंगे, ऐसा ना? कुछ तो साइक्लोन के नाम बताओ। तोकते था। हाँ, ताउते, TAUTE ये। और इसके पहले फॉनी था, आपके पास बहुत ही अच्छे थे, हुडहुड था, हुडहुड एक साइक्लोन के नाम। और बाहर कंट्री में जाओगे तो आपके पास अच्छा मूवी स्टार का नाम मिल जाएगा, रीटा, जीटा, बड़ा अच्छे नाम होता है साइक्लोन के नाम। वो भी रीजन से कोई पर्टिकुलर जगह, मैक्सिमम जगह दिल्ली में होगा। किस टाइप का पानी घूम रहा है, व्हाट डज इट मीन? एनीवन कैन टेल मी? पानी एक जगह से ऐसे सर्कुलर का क्यों घूमता है? नो आइडिया। ओके, अपने घर में सिंक होगा, जा रहा है। सिंक में क्या करो, इस जगह में बंद कर दो, सिंक में जो आउटलेट था उसको बंद करो, उसमें पानी पूरा भर दो। उसके बाद क्या करो, इस आउटलेट को खोल दो, तो पानी आप देखोगे ऐसे सर्कुलर पैटर्न में जा रहा है, बहुत बढ़िया आवाज करके ऐसे जा रहा है। ये चलो, हैव यू एवर सीन इट? सिंक में पानी भर के। यस मैम। Yes. आज ये एक्सपेरिमेंट आज के दिन में कर लो। तो ये सिंक में यहाँ होल है, एक ही होल के अंदर सारे पानी एट ए टाइम जा रहे, टर्बुलेंट फ्लो होके, तो इस टाइप के फ्लो होता है। इसका मतलब रास्ते में इस एरिया में कोई मैनहोल था, कोई गड्ढा था, कोई कुआं था, कोई मैनहोल था, तो इसीलिए अवॉइड किया जाता है। आप देखे होगे अभी मैक्सिमम रीजन है कि MP में दिखा रहा था कि 2 बॉयज अपना बाइक लेके, उनको बोला जा रहा है कि यहाँ पानी इसे सर्कुलेट हो रहा है, मत जाओ, वो इसी रीजन में कवर कर रहे थे, लेकिन उनका मोशन ऐसे हो गया, पूरा बाइक के साथ गड्ढे में चले जाते हैं और कहाँ जाते हैं कुछ पता ही नहीं होता। सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, आई हैव सीन बड़े बड़े बिल्डिंग ऐसे जाते हुए, प्रोन टू फ्लड, बड़े बड़े बिल्डिंग इसके अंदर ऐसे घूम घूम के अंदर चले जाते, इतने बड़े बड़े होता है, होल होता है इसके अंदर, बिल्डिंग पूरा टुकड़ा ही हो जाता है, घूमता ही रहता है। दिस सेम थिंग इज देयर ऑन द एयर आल्सो। ये हम वाटर के लिए बोल रहे हैं, एयर में जब होता है अरे आप ओशन में का मैं ओशन के अंदर नहीं बोलूँ, मैं बोलूँ ओशन से बाहर जब साइक्लोन होता है, पानी आता है रोड पे, मुंबई के रोड में, अगर ये ओशन के अंदर होता है तो इसको क्या बोला जाता है? वंशिका, यू हैव ओनली रेज्ड द क्वेश्चन। अगर आप ओशन के अंदर अगर आप एक ही साइक्लोन रीजन में, होता है। सुनामी होता है, साइक्लोन होता है, एक जगह से आता है, फिर ऐसे टोरॉइडल मोशन लेके साइक्लोन आके, साइक्लोन का लैंडफॉल का मीनिंग क्या है? साइक्लोन इस एरिया में लैंडफॉल क्या है? लास्ट टाइम आई हैव विजिटेड द एरिया वेयर द साइक्लोन फॉनी हैज डन द लैंडफॉल। फॉनी जिस एरिया में लैंडफॉल किया था, उस एरिया मैंने देखने के लिए स्पेशल टाइम लेके गई थी। उस एरिया में, जिस सी बीच में, जिस एरिया में हम बैठ के, पहले से हमारे स्कूल के ट्रिप जहाँ होता था, जिससे सी लेवल यहाँ से स्टार्ट होता था, यहाँ से सी लेवल, इतने एरिया पूरा सैंड होता था, बच्चे इस एरिया में, स्कूल के बच्चे खेलते थे, जिसको सी में जाना है वो जाके वापस आता था। अभी जब लास्ट टाइम मैंने गया फॉनी के बाद, ये जो पानी यहाँ था ना, वो ये सारे गड्ढा हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या है, पानी इस जगह में टच किया है, तो ये लोग यहाँ से सीमेंटिंग कर दिए। इस एरिया के जो सैंड था, इस एरिया के जो सैंड था, इतने एरिया का जो सैंड था, उसको यहाँ से बहुत गड्ढा करके
इसको इस तरफ निकाल दी। यहाँ से जो पेड़ थे, बड़े बड़े यूकलिप्टस जो पेड़ थे, बहुत हाई राइज पेड़ थे, वो सारे पेड़ के टिप तक आ गए। सारे पेड़ ऐसे सैंड के अंदर डूबे हुए हैं। आई एम टेलिंग अबाउट योर दिस रीजन, सन टेम्पल कोणार्क के साइड में जो इंटरनेशनल सर्फिंग सेंटर होता है, सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होता था, उस एरिया में सी बीच ये हुआ है आफ्टर द लास्ट साइक्लोन, सबसे डेंजरस साइक्लोन फनी के बाद। पर्सनली आई हैव विजिटेड बिकॉज इट इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस। लैंडफॉल क्या होता है साइक्लोन का? साइक्लोन लैंडफॉल मतलब ये होता है, साइक्लोन लैंडफॉल, अभी जब भी साइक्लोन होगा आप देखो, साइक्लोन जब यहाँ सी के बीच में होता है, यहाँ ऐसे घूम घूम के आके, ये डिपेंड करता है विंड के डायरेक्शन और सी करंट के डायरेक्शन। ये ऐसे हो गए जैसे लास्ट टाइम हमारे एरिया में, इन माई नेटिव एरिया, ये डाउनफॉल होने वाला था, लैंडफॉल यहाँ था, लेकिन पता नहीं कहीं से हवा आया, इसको यहाँ लेके वेस्ट बंगाल में लैंडफॉल कराया। कभी आपको आंध्र में लैंडफॉल, लैंडफॉल मतलब यहाँ से देखो ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ये साइक्लोन ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे पानी भी ऐसे चल रहा है। और इसके बाद ये क्या करता है, ये समुद्र, सपोज ये जमीन के साथ टकरा है, जैसे देखो जमीन के साथ टकरा है, इससे कुछ पोर्शन पानी में रह गए। पानी तो यहाँ बहुत ही हाई टाइड आता है, कितना आया था मेरे एरिया में, 18 मीटर हाइट का टाइड, पूरा मकान के ऊपर भी चला जा रहा था। और इतने एरिया जो आया ना, वो इस एरिया में जितने भी चीज होगा वो सबको उड़ा के लेके समुद्र में डाल देते हैं। अगर ये और सीवियर हुआ तो इतने इतने एरिया कब आ जाता है। साइक्लोन का लैंडफॉल इतना सीवियर होता है कि इसका लगभग 75% लैंड में आ जाता है। लैंडफॉल देखोगे जो दिखाता है लाइव टीवी में, साइक्लोन का लैंडफॉल दिखाता है आजकल तो बहुत ही अच्छा है, सारे टीवी में दिखाते हैं। कभी तो माइक सेट के साथ वो टीवी रिपोर्टर का लास्ट ईयर उड़ा के ले गया था, 3 दिन बाद उसका होश आया, साइक्लोन लैंडफॉल दिखा रहा है, इसमें तो वीडियो ही बन के रखा है, लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। ठीक है, कभी वीडियो में एक भेज दूंगी, मेरे एरिया इसके लिए फेमस है, लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन के लिए। ओके, नाउ सी दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन उसको कैसे साइंटिस्ट और वेदर फोरकास्टिंग में हाउ दे टेक इट इन एडवांस, वो वाटर लेवल को स्टडी करते हैं, एक नंबर दिया जाता है, वो अगर उस नंबर से ज्यादा आया तो सीवियर टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो मीन आपको दिखाएगा एक चीज इसमें टर्बुलेंट फ्लो में आता है, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी इज वीसी। पहले हम टर्मिनल वेलोसिटी पढ़े थे, अभी क्रिटिकल वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है आपके लिए देखिए। क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी किसके ऊपर प्रोपोर्शनलिटी है देख लो, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, it is proportional to the coefficient of viscosity, ABC. Can you tell me what is the value of ABC? Dimensional analysis, ABC ये डायमीटर है, रो होता है m l -3, मैम A की 1, B की -1, C की भी -1, l है c, और ईटा होता है m l -1 t -1 टू दी पावर c। इक्वेशन ले लो, सॉल्व करो, यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। a इज इक्वल टू कितना बोले, a कितना था हिमांशु? हिमांशु से बुक देख के बोल रहे हो क्या? No need to see the book and tell me. Do the solution. Rho d VC. बताओ कितना आ रहा है? मैम 1, A1 है। A is 1, B -1, -1. B -1, C B -1। C की भी -1। then what is the equation you have decided? VC is equivalent to rho Rho ऊपर, by d eta. let it is with a proportionality constant K, rho divided by eta d, यही बताया ना, K rho by eta d, K is a proportionality constant। ठीक है, यही बताया। मैम K आना चाहिए ऊपर और नीचे ईटा रो। नहीं अब मुझे नहीं लग रहा है कि आप सही किए।
मैं यहीं से वेरीफाई कर लेती हूँ। ml-3 दिया हुआ है, नीचे ईटा आपका ml-1 t-1 है और d आपका l है, तो l तो यहाँ बच गया, ठीक है। l -1 l तो कट गया, k आएगा। हाँ ये गलत दे रहे हो रिलेशन। ये होता है k ईटा डिवाइडेड बाय रो d, ये है करेक्ट आंसर। इसका मतलब a इक्विवेलेंट टू -1। कौन सा सोल्यूशन कर रहे हो, गलत सोल्यूशन कर रहे हो। a -1 मैम फिर t सी बोलना है। +1 है। अरे फिर क्या है, कनक आर यू सॉल्विंग, दिशिता आर यू सॉल्विंग, दिशिता। हाँ मैम, बस साइन की गलती हो गई थी। अरब ग्रेवल आर यू हियर, अरब ग्रेवल आर यू हियर। 1 2 3 टाइम्स बोलेंगे। नो रेस्पॉन्स मीन्स यू आर नॉट हियर। अरब ग्रेवल नो। अरुमिता आर यू हियर, नो। Yes, ma'am. अरुमिता आर यू सॉल्विंग दिस, ए बी सी के वैल्यू आपका Yes, सही ma'am, आ I रहा है। am. ओके, ऐश्वर्या आर यू हियर, ऐश्वर्या Yes. गोपीनाथ आर यू डूइंग इट। क्योंकि बहुत बच्चे एब्सेंट थे कल, बाद में डाउनलोड करके अटेंडेंस देखा। नहीं थी दिस क्रिटिकल वेलोसिटी के फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया। क्रिटिकल वेलोसिटी vc इज इक्विवेलेंट टू ए कांस्टेंट k को नाम दिया जाता है rn, इसके नाम rn होता है। d डिवाइडेड बाय, नहीं d तो नहीं, ईटा, rn ईटा डिवाइडेड बाय रो d। this rn, this constant rn is equivalent to rho d vc divided by eta. This rn is known as a Reynolds number. Reynolds number. rn is known as a Reynolds number. Reynolds is the name of a scientist. उनके नंबर ही डिसाइड करता है फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन होगा, टर्बुलेंट होगा, क्या लामिनार होगा। whether the flow of the liquid in a particular region during flood, cyclone, normal, river flow, किस टाइप की रिवर फ्लो है, that decides this Reynolds number value. तो ये Reynolds number is a constant. Can you prove it? Reynolds number is constant. You can prove it by putting the dimension. रो के डायमेंशन कितना है, ml-3 डिवाइडेड बाय d आपका l और vc आपका l-t-1 डिवाइडेड बाय m l-1 t-1। देखो m कट गया, l-3 और ये 2, तो l-1 कट गया l में और t-1 कट गया, तो दिस इज ए कांस्टेंट। रेनॉल्ड्स नंबर इज ए कांस्टेंट, इट हैज नो डायमेंशन। ओके, कभी क्वेश्चन में जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डायमेंशन मैंने पूछा था, 60% बच्चे मुझे डायमेंशन बना के दिए, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशन लेस होता है, बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विथ डायमेंशन होता है। दीगर आपको डायमेंशन में दो टॉपिक पढ़ाया गया, दो चीज पढ़ाया गया था, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये सब नो, इसको याद है फर्स्ट चैप्टर डायमेंशन। यस मैम। यस मैम। इसी टॉपिक में आंसर दो, डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सा है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट कौन सा है, इसी टॉपिक में। डायमेंशन रेनॉल्ड्स नंबर है और डायमेंशनल है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशन लेस है कनक, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। Okay, now this Reynolds number decides whether the flow is turbulent or the flow is streamlined. Now you see, again इसकी formula दोबारा लिखेंगे। Now the flow is turbulent. Flow is turbulent if velocity of the liquids or fluids का velocity is greater than vc, critical velocity. Flow is streamlined. Streamline flow का condition क्या है, it should be less than velocity of the flow is less than critical velocity. तो इसका मतलब critical velocity तक ये streamline था, critical velocity
के बाद ये टर्बुलेंट बन गया, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी होने तक ये स्ट्रीमलाइन था, क्रिटिकल वेलोसिटी होने के बाद ये टर्बुलेंट बन गया। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कितना होना चाहिए? क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास नहीं दिया होता, हमारे पास दिया होता है रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कितना। रेनॉल्ड्स नंबर वैल्यू वी आर हैविंग इन 3 रेंजेस, ठीक है। वन इज योर 0 to 2000. आई एम गिविंग यू द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर मेजरमेंट किया जाता है अगर ये 0 to 2000 के अंदर आता है तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। रेनॉल्ड्स नंबर आपका 0 to 2000 के अंदर आ गया तो फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। अगर ये 3000 से ग्रेटर है, इफ इट इज ग्रेटर देन 3000 देन इट इज टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मीन्स सी बीच में बड़ा सीवियर टाइड आने वाला है। रेनॉल्ड्स नंबर आपको दे दिया कि टाइड का हाइट बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा वाटर टर्बुलेंट है, डोंट गो इनसाइड बोला ही जाता है, डोंट गो इनसाइड, देन इट इज मैम और ये टर्बुलेंट। जो ट्यूबुलर और लैमिनर होते हैं ना, ये स्ट्रीमलाइन के अंडर ही होते हैं ना? हाँ, it lies between 2000 to 3000, then it is told as unstable flow. इसको बोलते हैं अनस्टेबल। अगर ये 2000 to 3000 होता है तो ये प्रेडिक्शन करते हैं कि साइक्लोन और बाढ़ इस एरिया में आने वाला है। 2000 to 3000 मीन्स ये अनस्टेबल फ्लो है। लैमिनर एक्चुअली इसमें नहीं दिया हुआ है। लैमिनर फ्लो एक्चुअली प्लेन पे ही जाने वाला, ये वेलोसिटी प्रोफाइल के साथ, that is not decided by your Reynolds number. Reynolds number is mainly for streamline और turbulent flow की डिफरेंस। तो आपका जैसे मैम मैम हम लैमिनर फ्लो के लिए भी स्ट्रीमलाइन फ्लो की वैल्यू ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। लैमिनर फ्लो आपके स्ट्रीमलाइन के अंदर ही आएगा, जो लैमिनर के अंदर जा रहा है, ट्यूब के अंदर ही जा रहा है। ट्यूबुलर और लैमिनर उसी के पार्ट है, स्ट्रीमलाइन के ही पार्ट है, लेकिन वो डिफरेंट विस्कोसिटी और डेंसिटी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी प्रोफाइल उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। मैम टाइम हो गया। कहाँ टाइम हो गया इतने जल्दी? 12:45 तक था। चल भाई मैम आपने शेड्यूल में लिखा है 12:20 तक है। नहीं, 12:45 तक क्लास है। 11:45 to 12:45। सीमा मैडम आपको 20 मिनट्स ब्रेक दिए थे, ऐसा नो, क्योंकि बहुत ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ाए थे शायद मैम। नेक्स्ट क्लास आपका 12:55 में है। नेक्स्ट क्लास आपका 12:55 to 1:40 है। दिस इज योर मैथमेटिक्स क्लास, सब्स्टिट्यूशन बाय रचना मैडम। ललित सर इज एब्सेंट टुडे, ठीक है। माइंड क्लास विल कंटिन्यू अप टू 12:45। 10 मिनट्स ब्रेक यहाँ भी है। कुछ बच्चे तो पूरे ही ब्रेक ले लिए, पॉल्यूशन ब्रेक में पूरे ब्रेक ले लिए। मैम आपने 12:40 भेजा था ग्रुप पे। हाँ तो ठीक है, 40 में खत्म करेंगे, अभी 20 मिनट्स और है ना, ऐसा नो। मैम 10 मिनट्स। हाँ ठीक है, 10 मिनट्स की रुक जाओ। तो दिस फ्लो इज अनस्टेबल इफ द रेंज बिटवीन 2000 to 3000। ऐसे आपका अर्थक्वेक भी मेजरमेंट किया जाता है। अर्थक्वेक कितने से ऊपर डेंजरस होता है ये सिनेमा? कितने वैल्यू से ऊपर मैम अर्थक्वेक? 7 7 6 से ऊपर बोलते हैं। if it is greater than 6 then it is going to be dangerous। 7 से ऊपर होता है तो बहुत डेंजरस। 8 के ऊपर होता है तो इमीडिएटली एनडीआरएफ टीम पहुंच जाता है कि वहां ह्यूमन लॉस तो होगा ही होगा, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर का कुछ न्यूमेरिकल है हमारे पास, अच्छा खासा न्यूमेरिकल है इसमें। एक तो टर्मिनल वेलोसिटी का, एक न्यूमेरिकल टर्मिनल वेलोसिटी को करो, इसके बाद छोड़ देंगे। इफ एन इक्वल रेनड्रॉप, आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूला दोबारा में लिखते हैं। एज एनीवन वाज रिमेंबर, आपको फॉर्मूला रटना है, कोई रटा है? Vt is equivalent to anyone from the whole class? मैम 2/9 r square by n rho minus sigma into g। ठीक है। और ये आपका रेनॉल्ड्स नंबर नहीं, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आर एन डी, नहीं आर एन ईटा बाई रो डी। ईटा ऊपर आ रहा था नहीं, ये दोनों वेलोसिटी आपके इस टॉपिक में है। अभी टर्मिनल वेलोसिटी में आपके पास सपोज यू आर हैविंग n इक्वल रेनड्रॉप्स फॉलिंग थ्रू एन एयर विथ स्टेडी वेलोसिटी ऑफ, आपका n टाइम्स इक्वल रेनड्रॉप
are falling down. ठीक है, विथ ए स्टेडी वेलोसिटी, सपोज v वेलोसिटी में ये नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, और ये कोलेस हो गए। कोलेस का मीनिंग क्या है बता, जोड़ गए। रेनड्रॉप देखो, एक बबल यहाँ से आता है, एक यहाँ से आता है, दोनों जोड़ जाते हैं। ये बबल सब बनाए हो आर्यन, जो इतने बड़े बड़े आता है उसमें बबल्स बनाते हो, एक साथ 4 बच्चे अगर बबल बना के बीच में उसको बड़ा सा बना देते हो तो कोलेस कंडीशन होता है। आप खुद ही बना सकते हो कोलेस, एक इस डायरेक्शन में, एक उसके बाद, छोटा बड़ा दोनों इससे कोलेस हो जाता है। कभी देखते हो ये होता है, इसके ऊपर ऐसे होगी, ये कोलेस होता है। अभी अगर 3 कोलेसिंग कंडीशन, Yes, ma'am. तो LESC कोलेस, ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? तो ये रेनड्रॉप जब कोलेस हो गया, आपके पास n ड्रॉप्स था, n ड्रॉप्स कोलेस हो गया, ठीक है। द रिजल्टेंट ड्रॉप की वेलोसिटी कितना हुआ? रिजल्टेंट ड्रॉप कैन न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। अगर ओरिजिनल टर्मिनल वेलोसिटी v था तो ये क्या इंडिविजुअली v था। जब ये पूरे कोलेस होके आ रहे हैं तो उसका न्यू टर्मिनल वेलोसिटी v डैश कितना है? मैम एनवी एनवी कैसे हो जाएगा? You are having n drops individually 4/3 pi r³ था इसके वॉल्यूम। आपके पास कितने ड्रॉप्स है? n ड्रॉप्स है, तो n इंटू 4/3 pi r³ बड़ा वाला ड्रॉप का वॉल्यूम रिमेनिंग सेम ना, 4/3 pi कैपिटल R³, ठीक है। इसमें से आप n एंड r के बीच में रिलेशन निकालो, उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी में डाल दो। टर्मिनल वेलोसिटी में आपका ये रो माइनस सिग्मा की जरूरत नहीं है, जी नहीं है, ईटा नहीं है, वो सारे सेम है। टर्मिनल वेलोसिटी किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है? ये सारे हटा दो, dt प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो यहाँ r स्क्वायर निकालो ना। dt डैश कितना है? r डैश का स्क्वायर। r डैश हम लोग किसको लिए? कैपिटल R के स्क्वायर लिए, बड़ा वाला का रेडियस कैपिटल R है, तो बड़ा वाला है रेडियस कैपिटल R, ये छोटा वाला है रेडियस स्मॉल r। अंडरस्टूड? छोटा वाला ड्रॉप कितना है? इन नंबर ऑफ ड्रॉप इंडिविजुअली कितना है उसका वॉल्यूम? 4/3 pi r³, तो n ड्रॉप n into 4/3 pi r³, तो बड़ा वाला 4/3 pi कैपिटल R³। Vt dash is proportional to r dash square, जो ओरिजिनली Vt था that is proportional to r square। Tell me what is the new Vt? Is anyone can tell me? कितना होगा? तब जाओ, इसी क्वेश्चन को आपको दिया जाएगा 1000 ड्रॉप, 64 ड्रॉप, नंबर ऑफ ड्रॉप चेंज करेंगे। इसी इक्वेशन में r और r के बीच में रिलेशन नहीं निकाल सकते, इस तरह से ले लो। No, Manak not getting. Manak, any answer you are getting? Is anyone getting answer? What is the relation between capital R and small r? No. Himanshu? Aryan? Yes, ma'am. What is the answer? अरे क्या प्रॉब्लम हो गया? कैपिटल आर रेनॉल्ड्स कांस्टेंट है। क्या? If you are having equation n into 4/3 pi r³ is 4/3, तो 4/3 pi दोनों साइड से कट गया, Ma'am, r³ by r³। तो r³ by r³, तो r कितना हो गया? r होता है क्यूब रूट Cube root of n r³।
So cube root of n, here r, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. n into cube root of n into r, ठीक है? तो n to the power 1/3 के पास कितना आ गया? दिस इज योर n to the power 1/3 into r आ गया, कैपिटल R। तो आपके पास Vt, तो V डैश था डिवाइडेड बाई V, दिस इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो ये r क्या हो गया? n to the power 1/3 का स्क्वायर, n to the power 2/3 r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, r स्क्वायर कट गया। देन व्हाट इज योर V डैश? V dash is equivalent to n to the power 2/3 V. This is the answer. n to the power 2/3 V. अगर यहाँ मैंने 100 drops लिख देता, if I write here 100 drops, what will be the answer? 100 to the power 2/3 कितना होगा? 100 के स्क्वायर फिर अंडर रूट, हो सकता है? नहीं, अगर मैं 64 लिखती हूँ, ऐसे क्वेश्चन में आपका आएगा। √10 हाँ, अंडर रूट 10। 64 अगर ड्रॉप्स कोलेस कर रहे हैं, अभी तो n ड्रॉप्स कोलेस कर रहे थे, अगर 64 ड्रॉप्स कोलेस कर रहे हैं तो 64 के स्क्वायर 8, 8 के अंडर रूट 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस न्यूमेरिकल? ये कॉमन न्यूमेरिकल है आपके लिए। मैम एक बार 64 वाला रिपीट कर दो। 64 टू द पावर 2/3, 64 आपको फॉर्मूला दे दी मैंने, n टू द पावर 2/3 भी। 64 वाला आप दोबारा देखो, अगर आप 16 आएगा ना? 64 वाला अगर आप करना चाहते हो, 64 ड्रॉप्स को ले, तो आपका पहले क्या है? 64 into 4/3 pi r cube is equivalent to 4/3 pi r cube। अगर आप नॉर्मल मेथड में सॉल्व करना चाहते हो, 4/3 pi कैंसिल, 64 r cube is equivalent to r cube, ठीक है? तो r कितना है? 64 का क्यूब रूट कितना है? 4. 4r, r is equal to 4r, तो r is equal to 4r, तो v dash by v is equivalent to r square by r square। तो कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16, हाँ ये 16 r स्क्वायर है, 16 r स्क्वायर बाई r स्क्वायर, तो 16 टाइम्स b हो गया, ठीक है? कनक यू आर करेक्ट, 16 टाइम्स b आ जाएगा 64 में। 1000 में आ जाएगा 10 टाइम्स। व्हाट यू आर टेलिंग? 1000 अगर ड्रॉप्स को लेस कर रहे हैं तो 1000 में कितना आएगा? 100 हाँ, Yes, ma'am, 100. यहाँ 10 आएगा तो यहाँ 100 आएगा। अरे अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? कितनी जल्दी से आंसर करने के लिए मंजूर, इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना। Yes, ma'am. आपके पास फार्मूला दिया जा रहा है, अभी आप क्या करें ना, सारे फार्मूला इकट्ठे किया जाएगा, जबकि आप क्विक आंसर कर सकते हैं। ओके, यू कैन लीव द क्लास। मैथमेटिक्स क्लास रक्षा मैडम विल टेक, यू जॉइन देयर। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am.
है।